Hello everyone. Today I am with Himanshu Adlaga sir, who is the founder of Winston, and he has also seen in Shark Tank season 2 and got the deal at Shark Tank. Hello sir. Sir, how do you come up with the idea of Winston and what thing motivates you? So, like, first of all, we had a powerful session today at the Gilgorias University, and the people were really amazing. So, I shared the same thing over there that like this is the not the first thing that I've come up with. This is the third startup that we started, and the idea behind why Winston was like earlier, like the co-founder with me, my better half, and the co-founder Nikita, she's a wife, and she was doing the offline distribution for a brand called Flawless, which is a US based brand, and she used to import the appliances from the US, and she used to sell offline. She had an Instagram page, not even offline. She was just selling it from Instagram. Okay. And what we saw before pandemic that the demand of such products increased because the salons were shut. Right, there was no place to go out, get your facial hair trimmed or your eyebrows because the lady at even if she is at home or she's going to a party, she doesn't want to see her upper lip. Right, sir. Right. So those products were not available, and she was selling it for the products with the international brands, but there was no warranty, and plus it was too much of premium that they were asking because there are a lot of import duties coming in. So we saw that there is no other brand in India doing it. It was only dominated by all the international brands. And we saw the product. It was such a basic product. Why there is no Indian brand doing anything out of it? You can start manufacturing in India. So that's where the idea of Winston came in. We started with one product. Now we have more than 20 SKUs. All these products are first asked by the consumer that actually you require this product or not. And then we launched that. Wow, sir. Sir, my next question is, sir, how's your experience after pitching on big stage in front of like big bulls of industries? People have created a myth that it's not it's created an hype that के अंदर जा रहे हैं एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है अंदर Right, sir. या फिर अंदर डर होता है जाने का Right. इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट Okay. दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल राइट अंदर डर किसी को भी लगेगा बिकॉज आप एक नेशनल टीवी पे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने ब्रांड को, which is a big thing and it's not easy to go there. एक शार्क टैंक के राउंड क्लियर करने के 5 राउंड्स होते हैं. Oh, पहले आप अप्लाई करते हो, देन यू गेट अ कॉल, फिर आप अपनी वीडियो बना के भेजते हो, देन यू गेट सिलेक्टेड, एंड देन उसके बाद आपको अपनी कंपनी का पूरा डेक भेजना होता है. okay. अपनी कंपनी की आपको बैलेंस शीट्स भेजनी होती है. Okay. फिर दैट गेट सिलेक्टेड, देन दे कॉल यू फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद द क्रिएटिव डायरेक्टर्स ऑफ सोनी टीवी. Okay. फिर उनके साथ आपका फेस टू फेस होगा, एंड देन यू गेट अ फाइनल कॉल फ्रॉम शार्क टैंक दैट अब आप आके बॉम्बे में पिच कर सकते हो. सो इनिशियली अगर आप देखोगे तो अराउंड 3 to 4 lakh applications come in. 3 to 4 lakhs. Okay. Applications come in. उसके बाद ये filter out होते होते actually it is 300 people shooting. Shooting. And out of that 300 around 130 140 come on air. Okay. So see the ratio. Right, So sir. it's a big thing which goes on, and that's very interesting when you go inside. हमें भी डर था, हम नहीं झूठ बोलेंगे कूल बनने के लिए, हमें भी डर था, बट जब हम अंदर गए तो शार्क्स ने इतना कंफर्टेबल कर दिया हमें पहले ही 10 मिनट में कि वो टेम्परेचर कूल डाउन कर देते हैं, और फिर कूल डाउन करने के बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं Right, ताकि sir. आप एक स्टेट में आ जाओ जवाब देने के, क्योंकि आप नर्वस हो गए और वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो फिर जवाब नहीं आएंगे ना ढंग से, Right, sir. Right. और पैनिक मोड आ जाएगा. सो फर्स्ट दे टॉक अबाउट यू, योर फैमिली, योर किड्स, लाइफ में क्या चल रहा है. इट्स टीवी पे आप 15 मिनट देखते हैं, एक्चुअली ये 1 से 2 घंटे के बीच में होता है. 1 से 2 घंटे बीच में. 1 hour एटलीस्ट, मैक्सिमम इज 2 hours. Okay. ये चलता है, एंड फर्स्ट दे मेक यू कंफर्टेबल, व्हेन यू गेट इन दैट सेम पिच फिर वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, और जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वो 5 बंदे बैठे होते हैं और पांचों क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. जिसका आंसर मिस कर दिया 2 मिनट बाद बोलेगा सॉरी आई एम आउट. सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड टेल एवरीवन कि यार आपका ये क्वेश्चन था, आपका ये क्वेश्चन था, आपका ये क्वेश्चन था. यू हैव टू आंसर, यू हैव टू लुक इनटू आईज ऑफ एवरीवन, यू कांट मिस एनीवन. ओके सर. सर वेरी इंसाइटफुल जो मेरे को पता चला अभी सर. सर मैंने आपकी पिच देखी थी सर शार्क टैंक की, और मैंने तब भी देखी थी और अभी आने से पहले भी देखी थी. तो सर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी सर, जब आप पिच स्टार्ट की थी, हाँ विंस्टन ने हमारा जो
वैल्यूएशन रखी थी 1 CR फॉर 4% इक्विटी, वैल्यूएशन ऑफ 25 CR। बट आफ्टर पिचिंग, जब अनुपम सर और विनीता मैम ने इंटरेस्ट शो किया था, तब आप एंड मैम बाहर गए थे और फिर आप दोबारा वापस आए थे, जिसमें आपने एक्सेप्ट किया था बाद में 1 CR फॉर 10% इक्विटी। सो सर, जब आप बाहर गए थे, उस समय आपके मन में क्या थॉट्स थे? आपने क्या सोचा कि अपनी वैल्यूएशन कंपनी की घटा करके क्या मेरे को फायदा हो सकता है? तो सर, वो एक्सपीरियंस और वो मोमेंट में जो चलता है दिमाग में, मैं हमारी ऑडियंस वो जानना चाहती है आपसे सर। सी पहले तो वो बाहर जाने नहीं दे रहे थे, ओके वो कह रहे थे यही जवाब दो, तो सर, लाइक वो तो उसने बोला कि ठीक है आप जाइए, उसमें ऐसा दिखाया वो उन्होंने। कट बहुत होते हैं ना। तुमने कहा मैं बाहर जाना, बोले नहीं यही डिसाइड कर लो। ओके, तो फिर देन योर हर्ट, निकिता ने बोला बस 2 मिनट में आए। हाँ राइट सर। देन कि चलो ठीक है, तो चलो जाओ, 2 मिनट के लिए चले जाओ। When we went out, we actually took 15 minutes. 2 मिनट में बाहर नहीं आए। तो a lot of discussions were there. First of all, uh, our company was not even 1 year old. ओके Right? हमने अक्टूबर 2021 में कंपनी स्टार्ट करी थी। ओ हमारा शूट अगस्त 2022 में हुआ। इट वाज नॉट इवन अगस्त वाला, ऑन एयर जनवरी में आया ना, हाँ बट राइट शूट तो अगस्त में हो गया था। राइट आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 19th अगस्त को शूट हुआ था। 19 अगस्त को। एंड वी वर द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द टैंक। जब शूटिंग 19th अगस्त को ही शूटिंग स्टार्ट हुई थी ओके शार्क टैंक की। ओके, तो हम डे 1 पे गए थे। द फर्स्ट कंपनी। द फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट कंपनी, वी वर द फिफ्थ वन टू, बट डे 1 था हमारा। डे ओके, 1 इज द फिफ्थ कंपनी। अंडरस्टूड सर। एंड सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू एंटर, व्हेन यू सो जब आप जाते हो अंदर, पिच करते हो, सारी चीजें करते हो, तो जब हमें बाहर हम आए, एक वो कूल डाउन एटमॉस्फेयर नहीं आता, आप उसी पिच पे रहते हैं। और बाहर आने के बाद व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, यार 1 साल भी नहीं हुआ कंपनी को, हमने वैल्यूएशन मांगी है, बट वैल्यूएशन से ज्यादा हमें था कि जो बंदों को हम टेबल पे लेके आएंगे, प्रॉब्ली वो जो वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, वैल्यू ऐड करने के बाद कभी और कर लेंगे ना वैल्यूएशन। राइट सर। हमें वैल्यूएशन गेम में भागना ही नहीं था। वी वांट टू बिल्ड दिस कंपनी विदाउट कीपिंग इन माइंड कि क्या वैल्यूएशन चल रहा है। ओके ठीक है, हमें वैल्यूएशन फैक्टर नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इनटू द मार्केट, इनटू द फंडिंग जोन एज ऑफ नाउ। हमें फंडिंग 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 अभी नहीं करेंगे। वी वांट टू मेक दिस कंपनी अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड इन अ लॉन्ग रन, जहां पर हम इसको एक सस्टेनेबल कंपनी बनाए, ज्यादा अप्स एंड डाउन्स ना हो। और जिनको हम टेबल पे लेके आए हैं, स्पेशली अनुपम एंड विनीता, आई शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद देम। ओके I don't know बाकी founders के साथ क्या, I've not heard of it. But like with Anupam, I share a mind with, like, if I text him right now, 5 मिनट में रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, वाओ so I am so close to him. So bringing that person on the table matters. The valuation doesn't matter. जब आपकी कंपनी बहुत छोटी है, उस टाइम पे like when we were there inside the tank, हमारी सेल कितनी थी? We were selling 20 lakhs a month, 20 lakhs 22 lakhs. ओके Right now we are doing more than 5 crores a month. ओके सो जंप बहुत बड़ा हुआ है, और सम ऑफ द क्रेडिट गोज टू देम आल्सो, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो हेल्प करते हैं हमें। लाइक इनफैक्ट द ब्रांडिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी कमिंग अप विद न्यू लोगो, तो वो लोगो भी सिलेक्ट करना था, तो उसमें वो अपने दे रहे थे कि यार इसको ना ऐसे मत कर, इसको ऐसे कर ले। सो दे ओके। आर दैट इनटू, दे डोंट आस्क ऑन डेली, बट अगर आप उनसे कुछ पूछते हो तो दे आर ऑल अवेलेबल फॉर यू। सी आई कैन टॉक अबाउट माय शार्क्स, मेरे तो दोनों बहुत बढ़िया है, तो बाकी का आई डोंट हैव अ पर्सनल कनेक्ट, सो आई डोंट नो, बट मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं उनके साथ, और देर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। सर, जैसे आपने मेंशन किया, सर आपका बॉन्ड अनुपम सर के साथ और विनीता मैम के साथ काफ़ी अच्छा है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। सर, आपका एक्सपीरियंस अनुपम सर के साथ और विनीता मैम के साथ अभी तक काम करके कैसा है, और क्या इंसाइट्स आपने अभी तक गेन किए? सी व्हेन यू टॉक टू दीज पीपल, सो इट इज लाइक नो बुलशिट। ओके आप जब आप बात कर रहे हो ना, सो यू हैव टू बी ऑन द पॉइंट। सी अनुपम हो या विनीता, राइट, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अनुपम। ही हैज इन्वेस्टेड इन मोर देन 200 कंपनीज। राइट ठीक है, चाहे 300 कंपनी भी हो गई, अगर एक साल के कैलेंडर के अंदर छुट्टियां हटा दो, उसमें 300 दिन बचते हैं, 300 से कम बचते हैं। अगर अनुपम डेली किसी एक फाउंडर से मिलेगा ना, तो भी शायद वो पूरी कंपनी से अपनी कवर नहीं कर पाएगा। राइट सर। राइट, राइट नॉट रॉन्ग। श्योर सर। बट ही इज अवेलेबल फॉर मी इन 5 मिनट्स। तो वो कैसे? वो इन्होंने अपने मैनेज इतने तरीके से करा हुआ है, इन्होंने टीम अपनी इतनी अच्छी बिल्ड कर रखी है दैट whenever you are, you want them, they are available, but it should not be in a way कि जब मर्जी मन करा किसी भी रैंडम चीज के लिए। you have to be on very point। अगर हम 6 महीने में एक बार मिलते हैं, we go out for lunch and then a meeting, जिस मीटिंग के अंदर हमारे एजेंडा सेट होते हैं ओके कि मेरे को इन्हीं 5 पॉइंट्स पे बात करना है। ओके आई कांट गो अप टू देम कि यार मेरी
शिपिंग कंपनी में ये प्राइसिंग चल रही है, प्राइस नेगोशिएट करा दो, इस पे उनके पास टाइम नहीं है यार। यू हैव टू बी इन अ वे कि यार मेरे को ब्रांड एम्बेसडर लेके आना है, या करीना कपूर लेके आनी है, या जानवी कपूर लेके आनी है, इनमें से कौन से करूँ, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है राइट जहाँ सर। वो हेल्प करेंगे। डेली ऑपरेशन लेवल पे वो नहीं घुसेंगे ना, उनके राइट पास और सर। बहुत काम है, राइट? सो you have to be on very point that what do you want to ask, and the question should be of a level where you need them। ये नहीं कि बस पूछ लिया, कर लिया, सो यू हैव टू बी देयर। एंड अगर आप ये ऐसा बॉन्ड रखोगे, ठीक है, और आप ऐसे इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछोगे जहां उनकी जरूरत है, दे विल हेल्प। बट आप एक बार चले जाओगे उनसे बेकार के क्वेश्चन पूछोगे, अगली बार वो आपको टाइम नहीं देंगे ना, बिकॉज दे हैव मोर वैल्यूएबल थिंग्स टू डू इन लाइफ। राइट सर। सर जैसे आपने मेंशन किया कि अराउंड हर 6 मंथ्स में आपकी अनुपम सर के साथ मीटिंग होती है कुछ एजेंडाज पे बात करने के लिए, जो कि फाइनलाइज करनी होती है थिंग्स। बोथ ऑफ देम, अनुपम हाँ। एंड विनीता बोथ आर देयर। ओके। तो सर ये आपका और उनका पर्सनल बॉन्ड है, या सबके साथ उनका यही टेन्योर रहता है कि हर 6 मंथ्स अभी जिन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके साथ इसी टेन्योर मिलना होता है? See, it depends how complex the company is। राइट। ठीक है, कि अगर किसी को उनकी जरूरत साल में एक बार है, ठीक है, और वो काम जी मीट पे भी हो सकता है, सो प्रॉब्लम क्या है? राइट सर। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि आपने दिखाने के लिए कि पिक्चर क्लिक कराने जा रहा है, एंड ऑफ द डे यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस। सो कई कंपनीज होती है जिनको 2 साल में एक बार जरूरत है, कई कंपनीज होती है जहां पर उनको लग रहा है कि कंपनी ठीक नहीं चल रही, इनको हमारी गाइडेंस की जरूरत है, देन ही मेक श्योर कि वो हर महीने उनके साथ वीडियो कॉल पे जाएंगे। राइट। इवेंचुअली पैसा तो उन्होंने लगाया हुआ है ना। राइट सर। ठीक है, और कई, लाइक इफ आई टॉक अबाउट इन माय केस, वी कीप अपडेटिंग आवर एमआईएस, पूरा एमआईएस रेडी रहता है, सब कुछ रहता है। आई डोंट रिमेम्बर कभी मेरे को अनुपम में विनीता ने किसी ने बोला हो कि यार कंपनी में ये दिक्कत चल रही है या ये चल रहा है। अब जनवरी 2023 में पैसा आया था ओके। कंपनी के अंदर, 22 में ऑन एयर में आए थे, कुछ हमारे एसएचए में एग्रीमेंट्स में क्लॉजेस वगैरह बहुत सारी डिस्कशंस थी, ओके। विच टुक लॉन्ग। एंड जनवरी 2023 दिसंबर 2022 में पैसा आया था। ओके। आज दिसंबर 2024 हो गया, 2 साल हो गए। ओह। 2 साल में मेरे को कभी नहीं याद कि मेरे को अनुपम ने, विनीता ने, या उनकी टीम ने किसी ने कॉल करा हो कि एमआईएस अपडेटेड नहीं है, या आपकी कंपनी के अंदर ये सेल इस महीने ऊपर गई है तो अगले महीने सेल थोड़ी नीचे की हो गई है, because they see the entire thing। I keep updating them। We have a group, Okay. अनुपम, विनीता, मैं और निकिता, हम 4 हैं। ओके। We keep sharing कि आज हमने ये ग्रोथ करी, हमारा ये बिट्टा चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, तो ये keep updating। तो they are also like, दे नो कि यार ये दोनों फाउंडर बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। वो छेड़ेंगे वहां पर जहां पर उनको पता है कि यार ये रिस्क है, राइट। या ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम ठीक करते हैं, इसको हम हेल्प करते हैं। जहाँ लगता है कि पैसा फंस रहा है उनका। जब इट इज नॉट पैसा फंस रहा है, मतलब कि कंपनी की डायरेक्शन सही नहीं है, राइट। कुछ गलत कॉल्स ले लिए गए हैं। ठीक है, यार हर बंदा कंपनी चला रहा है, कोई गलत क्यों करेगा? राइट। पर ठीक है, कहीं की अंडरस्टैंडिंग है, कई बार कॉल्स गलत हो जाती है। राइट सर। ठीक है, तो उनको ज्यादा टाइम देंगे। जो चीज चल रही है, वो क्लास का पढ़ाकू बच्चा होता है तो उस पर टीचर कम ध्यान देती है। राइट सर। राइट। ठीक है, लाइक ये नहीं कि वो कंपनी, बट वेरी गुड कंपनी, एग्जांपल सर। एक कंपनी है जो स्ट्रगल कर रही है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मार्केट अच्छी नहीं चल रही, ठीक है, उनके रोआज बेटर नहीं आ रहे, या मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई है, या कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें। जरूरी नहीं है फाउंडर गलत है, फाउंडर तो सारे ही बढ़िया होते हैं, बट वो उसके हिसाब से टाइम निकालेंगे। अभी हमारा सबसे, बट जब हमें जरूरत होती है हम खुद चले जाते हैं, वो इसलिए हमें पोक नहीं करते क्या चल रहा है क्या चल रहा है, वो ये चीज नहीं करते, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। उनको पता है प्रॉब्लम होगी तो खुद आ जाएंगे, वो वहां पर दिमाग ज्यादा मारेंगे जहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज्यादा है। सो दिस इज द थिंग। अब किसको कितना टाइम मिलता है मुझे ये नहीं पता, ठीक है, बट यस, आई हैव सीन हिम इंटरेक्टिंग विद फाउंडर्स एवरी मंथ ऑल्सो। ओके। और हम तो कोई ना कोई इवेंट पे, इतने D2C इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम कोई ना कोई D2C इवेंट पे ही मिल लेते हैं। ओके। सर मैंने जैसे मेंशन किया था पहले कि मैंने शार्क टैंक की पिच देखी थी, तो सर मैं काफ़ी शार्क टैंक फ्रिक्वेंटली देखता हूँ। हाँ, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आते हैं, उनकी एंट्री होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की कुछ कैसी होती है। बट मैंने विंगस्टन की जब एंट्री देखी थी, सर बाय द वे काफ़ी यूनिक एंट्री थी। वो मास्क लगा के, एक सर सांप, गेस्ट की तो बात ठीक है, शार्क्स की बात ठीक है एक तरफ, बट जो सामने ऑडियंस है, उस जैसे लाइक मैं ऑडियंस था उस समय, तो मेरे को भी काफ़ी इंटरेस्ट आया कि यार ये वाली तो पिच देख के जाऊँगा। मेरे को खाना खाने जाना था, मैं कि नहीं अब बाद में खाऊँगा, ये वाली पिच देख के जाऊँगा। तो सर वो आइडिया कैसे आया आपको उस एंट्री का? आपका वो फेस मार्क के बारे में थोड़ा बताइए सर वो।
In this actually the Sony team helped us. ओके ठीक है, जब आप जाते हो वहां पर तो ये नहीं कि आप गए हम्म और आपका नंबर है अंदर जाओ, तो ऐसे नहीं होता. सो 19th को हमारा शूट हुआ था, तो हम 16th मुंबई चले गए थे. ओके 16th को उन्होंने बुला लिया था. एंड 17th एंड 18th 2 दिन हमारी, उन्होंने वहां पर हमारी पिच सुनी. ओके ठीक है, उन्होंने बोला कि यहाँ खड़े होकर प्रैक्टिस करते रहो. वो क्रिएटिव डायरेक्टर सुनता है, फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि आपकी ये पिच के अंदर ना ये गलत जा रहा है, आप इसको ठीक करो. इवेंचुअली कॉल इज योर्स. वो ये नहीं बोलेंगे कि पिच चेंज कर दो, वो आपको सजेशन देंगे कि ये थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, आप इसको ठीक कर लो. आपने ठीक करना है नहीं करना आपकी मर्जी है. राइट सर वो बट क्रिएटिव डायरेक्टर है, ठीक है, स्टूडियो नेक्स्ट का, सोनी का. तो कुछ कह रहा है तो सही कह रहे सही हैं. कह रहे हो कई लोग चेंज करते हैं, कई लोग चेंज नहीं करते, उनकी अपनी कॉल होती है. सो हमें ये आइडिया उन्होंने दिया था कि आप, पहले हम जा रहे थे बाथरूम स्पैन के अंदर, ओके कि हम वॉशरूम सेटअप के अंदर बैठे होंगे, ओके जहां पर निकिता फेस ट्रिम कर रही होगी और हाँ मैं चेस्ट ट्रिम कर रहा होगा. ओके ठीक है, बट उन्होंने बोला कि दिस विल बी अगेन ओनली वॉशरूम स्पेसिफिक, तो आप एक काम करो, आप इसको थोड़ा ऐसे करो, दिस विल लुक मोर क्लासी एंड द प्रोडक्ट आपका बहुत हाईलाइट हो जाएगा राइट सर इससे. हुआ तो भी वो हुआ भी. राइट सो दिस इन दिस एक्चुअली सोनी टीम हेल्प अस. ओके तो सर जैसे हमने क्रिएटिव डायरेक्टर की बात करी सोनी टीवी की मैं सर ये पूछना चाहता हूँ एक काफ़ी क्यूरियस हूँ मैं इस जानने के बारे में लाइक जैसे आपने मेंशन किया काफ़ी लोग चेंज करते हैं अपने स्क्रिप्ट और काफ़ी लोग नहीं करते हैं तो सर क्या ये भी एक रीज़न है कि जो स्ट्रीम होते हैं 130 ये उसका एक कारण है कि वो डायरेक्टर की बात सुन के पिच चेंज करते हैं नहीं नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता. जिस बंदे को डील मिलती है वो तो आता ही है ऑन एयर, राइट उसकी पिच जैसे भी हो. एंड देन जो लोगों को पिच, जो फंडिंग नहीं नहीं मिलती मिलती है, है उसको सोनी सिलेक्ट करता है. फिर शार्क टैंक और सोनी मिलके सिलेक्ट करते हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट, क्या ये पिच दिखाने लायक है या नहीं है. सी इट्स लाइक पिचेस तो सारी हैं, ठीक है, बट बेस्ट आउट ऑफ ऑल निकालना है हमको. राइट सर इवेंचुअली टीवी पे तो दिखाना है ना, टीआरपी भी चाहिए. टीआरपी भी चाहिए तो वो उस पर डिपेंड करता है. वे शार्क टैंक एंड सोनी कोलैबोरेटिवली सिलेक्ट की इसको दिखाना चाहिए, इसको नहीं दिखाना. और जिसको वो नहीं भी दिखाते उसको वो यूट्यूब पे डाल देते हैं, या फिर अनसीन पिचेस में डाल देते हैं. बहुत सारी चीजें आती है, तो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड. मेरे लिए अभी इसके ऊपर कमेंट करना वुड नॉट बी अ राइट थिंग, बिकॉज आई एम नॉट अ सोनी गाय. तो उनके क्राइटेरिया अलग है, एंड नो आइडिया अबाउट देन व्हाट देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया इज. ओके आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. ओके ओके सर सर लाइक गलगोटिया में फ्रिक्वेंटली इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस होते रहते हैं सर डिड यू रियली थिंक कि ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है यार. मतलब आई कैन टेल यू, वी एक्चुअली मिस्ड दीज थिंग्स इन आवर कॉलेज. ओके कोई पॉडकास्ट नहीं होता था, कोई ई सेल नहीं होता था, एक प्लेसमेंट सेल होता था बस, जिसमें आज तक हम गए नहीं. राइट, और कोई इंटरेक्टिव सेशंस नहीं होते थे, कोई कोई वन टू वन कन्वर्सेशंस नहीं होती थी, कोई गेस्ट स्पीकर्स आते थे तो वो बहुत ही, और स्टार्टअप तो था ही नहीं ना यार. 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट 11-12. राइट ठीक है, सर आज से ऑलमोस्ट 13-14 साल पहले राइट सर वहां स्टार्टअप का कोई था ही नहीं, थॉट प्रोसेस ही नहीं था. तो हमने तो ये मिस करा है. बट नाउ व्हेन वी गो टू कॉलेजेस, वी मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ इनपुट, जो चीजें हमें नहीं मिली, ठीक है, एटलीस्ट वो हम बच्चों को एक्सप्लेन करें, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें. और आपके पास ई सेल्स है, आपने इतना अच्छा आज लॉन्च करा है, राइट. कॉलेजेस के अंदर आप, कॉलेजेस ने ई सेल्स बना के और ये प्लेसमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बना के उन्होंने फंडिंग लेनी शुरू कर दी. एंड नाउ लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट एलपीयू यूनिवर्सिटी, उनका अपना फंड है, दोनों उन्होंने आगे वीसी से फंड लिया है. ओके अब वो बच्चों को फंड्स देते हैं. ओके पहले ऑब्वियसली प्रोजेक्ट आएगा, समझेंगे उस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फंड देने लायक है या नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं. सो नाउ कॉलेजेस हैव गिवन दैट, राइट. आई वाज टॉकिंग अबाउट फाउंडर हु बिल्ड वन सैटेलाइट, जो नासा चली गई और नासा ने उसको ऊपर भी भेज दिया, ओके राइट. एलपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट. एलपी सो स्टूडेंट सी द क्रेजीनेस ऑफ स्टार्टअप विच हैज गॉट, ओके राइट. सो बहुत हेल्पफुल है. और अगर आप स्पेशली ये बुला रहे हो, फाउंडर्स को बुला रहे हो, आई गेस अश्नीर वाज आल्सो हियर, या a lot of people were there, तो यार इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती है. You guys have taken a very good initiative. Like, hats off to you. सर लाइक अभी आपने मेंशन किया एलपीओ के ई सेल के बारे में वो कैसे बच्चों को फंड करता है सर
आई वॉन्ट मैं अगले मेरा अगला क्वेश्चन यही था सर। लाइक अगर हमारी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में प्रॉपर इंक्यूबेशन सेंटर है, गलगोटियाज इंक्यूबेशन सेंटर है, और इसका जो हमारे सीईओ हैं कमल सर, साथ ही साथ इसमें हमारी वर्क करते हैं ई सेल। ओके हम सब हमारे यहाँ पे सर 3 स्टेजेस हैं इंक्यूबेशन की: प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, पोस्ट इंक्यूबेशन। हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं और फिर फंड करते हैं, उनको फिर हेल्प करते हैं। साथ ही साथ सर अब मैं ये जो अगली बात बताऊंगा क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा सर। सर लाइक फंडिंग को लेकर के आपकी क्या थिंकिंग है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ई सेल के लिए? लाइक ई सेल जो टीम है हमारी, वो यूपी गवर्नमेंट से फंडिंग दिलवाना चाहती है स्टूडेंट को। और सर आपके हिसाब से ये कितना बेनिफिशियरी है स्टूडेंट्स के लिए? सी फंडिंग देयर आर टू टाइप्स। आप गवर्नमेंट से फंडिंग लोगे और वीसी से लोगे। राइट सर। गवर्नमेंट फंडिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। राइट। ठीक है, गवर्नमेंट फंडिंग आप लोगे ना तो उनका क्राइटेरिया ये रहेगा कि गवर्नमेंट रिलेटेड काम या फिर कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। ओके। ठीक है, या फिर कि गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, बट जब आप वीसी लैंड पे जाओगे तो वीसी लैंड ना ओपन रहता है चारों तरफ से। ठीक है, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट वाला आप करो, ठीक है, विच विल हेल्प, बट पैरेलली आप किसी वीसी से भी बात करो। वीसी के मेल्स आईडी हर जगह Yes, अवेलेबल है, sir. where you can talk, you can, इसका बेस्ट ये है कि टेक 5 स्टार्टअप्स आउट ऑफ योर कॉलेज, द बेस्ट स्टार्टअप्स, नो सर और उन अगर 5 स्टार्टअप्स को पिच कर दो किसी वीसी को। ओके। वीसी अगर वीसी को समझ आएगा, वीसी अपना एक फंड बना देगा आपके कॉलेज के लिए। सपोजिंगली वो आपको 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट के अंदर, बट यू कैन यूज दैट 2 करोड़ ओनली आफ्टर देयर अप्रूवल। तो आपने उनको पिच दिखानी है, जो पिच उनको समझ आएगी, पैसा आपके पास पड़ा है, वो डाल देंगे। राइट सर। राइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू, एंड दिस विल हेल्प। ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट वाले के अंदर टाइम लगता है, राइट a सर। lot of documentation is required and a lot of hurdles आते हैं। सर So what I would यूनिवर्सिटी suggest is VC के साथ करो। yes sir, our university already funded 100 plus startup Hmm. from our university, and they are working, and some of them are now unicorn, Okay. like Solid Digital. Hmm. This is the one of the company जो यूनिवर्सिटी ने फंड किया था, और वन ऑफ द स्टार्टअप है हमारे 100 स्टार्टअप में से। It is great. फ्रॉम बिजनेस फैमिली, एंड जो मेरे फादर का बिजनेस है वो क्लॉथिंग का है। रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं मेरे होम टाउन में, बट जो कि वेल स्टेब्लिश्ड है। बट द थिंग इज मैं जो चाहता हूँ कि मैं उसे एक ब्रांड बनाऊँ और ई कॉमर्स पे उसे सेटअप करूँ। तो सर लाइक अगर मेरी जगह आप होते इस कॉम्पिटिटिव जेन में, जनरेशन में, आपका क्या स्टेप्स होते स्क्रैच से, जो आपने अपने टाइम पे कुछ गलती करी वो हटा करके क्या करना चाहिए इस टाइम? See, I will tell you. मेरा भी यही सी, that I'm coming from the same thing. पापा का बिजनेस है फरीदाबाद के अंदर, एलजी के और सारे ब्रांड्स के स्टोर्स हैं। तो मैंने अलग क्यों करा, वो भी तो वेल एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तो वो एक होता है ना कि स्टार्टअप का कीड़ा कह लो, या एक जगह नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है। सो वो चीज है, आई कैन सेंस दैट यू आल्सो हैव इट। सो again, your stores are like Clothing. it's women clothing, men Women clothing, clothing. Women women clothing. clothing. So right now India is an industry where fast fashion बहुत crazily boom हो रहा है। Right, sir. There's one brand called Snitch, Siddharth. सिद्धार्थ और चेतन, चेतन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सिद्धार्थ और चेतन, इन्होंने स्निच खड़ा करा है। Okay. उन्होंने भी अभी 100 करोड़ से ऊपर की फंडिंग ली है, एंड दे आर ओपनिंग 100 प्लस स्टोर्स इन इंडिया विद इन 2 years ऑलरेडी। इस साल के अंदर 6 महीने के अंदर वो अराउंड 34 स्टोर्स खोल चुके हैं। 34 stores. 34 Wow. स्टोर्स खोल चुके हैं, Wow. और उनको अभी 66 स्टोर्स और खोलने हैं। Okay. 100 स्टोर्स वो पूरे करें, एंड द ब्रांड इज गोइंग क्रेजी। राइट, उसका भी क्लियर ये था कि दुकान खोल के सामान बनाया और B2B में बेचना शुरू कर दिया। अरे बट ये नहीं करना, राइट, मेरे को ब्रांड बनाना है। Right, sir. राइट, सो यू शुड फॉलो हिज स्टोरी, व्हाट इज डिड। Okay. तो उसने विमेन में तो फास्ट फैशन था, बट मेंस में फास्ट फैशन था ही नहीं, लोग फोकस ही नहीं करते थे। उसने ग्रे एरिया देखा, और उसने मेंस के फास्ट फैशन को इतना क्रेजी बना दिया कि उसको विमेन की जरूरत नहीं, वगैरह मेंस में ही बहुत किलर है यार। उसने ब्रांड ऐसा क्रिएट किया। यू शुड डेफिनेटली फॉलो हिज स्टोरी, like listen to his podcast, what he did. So he's gonna be a good inspiration for you in the clothing background. Thank you so much, sir. Sir, like in Calcutta University, we have E-Cell and GIC guys to meet industry experts like you. But those who don't have these facilities, वो कैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिले और उनसे insights ले? People who are there in your
college? No, sir. Inside the college also and outside the college also. Like अगर in our university, we have ESAL and GIC, right? आज की डेट में I can see every second day or third day कोई ना कोई D2C event है, Right, sir. right? And everything is easily accessible on Google. हाँ, right. Start going in that events. Listen to the people. हम भी तो लोग जाके वहाँ बताते हैं, जैसे हम कॉलेज बता रहे हैं, हम वहाँ भी बताते नहीं. बट Okay. वहां पर आप जाओगे तो यू विल मीट 100 मोर पीपल. इंक्यूबेटर्स मिलेंगे आपको, वीसीज भी मिलेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, नई कंपनीज मिलेंगी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिलेंगे, उनकी बातें आप सुनोगे, वहां लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे. सो द बेस्ट थिंग इज मूव आउट ऑफ द कॉलेज. कॉलेज जो कर रहा है इट्स गुड, but move out of the college and start attending this D2C event. Well, I can name four, like Inc 42 के events में आप जाओ, Okay. बिजनेस वर्ल्ड के इवेंट्स में जाओ, फ्रेंचाइज इंडिया का एक बहुत बड़ा आईपी है एंटरप्रेन्योर इंडिया, उसमें जाओ. Okay. और दिस वन मोर डिजी इवेंट्स है, इमेजेस ग्रुप है. आई कैन नेम Many of them. 10 more of them, Okay. right? So ये इतने अच्छे इवेंट्स करा रहे हैं, you should start attending those events, Okay. which is a great benefit. Sir, I want to know about the hospitality and management at Galgotias University in this startup community launch event, please, Really, it was really amazing. And which is by the I- GIC and ESEL. yeah, and like it was pretty amazing. The energy was really nice. What I have seen in colleges, so college में जाते हैं हम, कुछ ज्ञान देते हैं, तो बच्चे बस वेट कर रहे होते हैं कि अटेंडेंस लग गई हमारी और now we want to leave. Right. So what with your the best thing what we saw was that after we completed the session, people were actually coming to us. Yes, sir. Right. Right. किसी को पिक्चर क्लिक करानी है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, 3 बंदों ने तो मेरे को अपने स्टार्टअप आइडिया शेयर करे, उनके Oh, साथ मैंने डिस्कशन okay. करी. So people were like, all the students were very interactive. Hospitality was pretty amazing. और like यहाँ पे 30,000 प्लस Yeah, right. क्राउड, Yes, उसको sir. संभालना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. नहीं, but yeah, like I'm glad to have you here and thank you for calling me. And it was a great session. And probably if you want anything, you want me to come again, और कोई आपने 1-to-1 सेशंस कराने हैं कुछ के साथ, आपने पिचेस दिखानी है, so I'm always in. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है सर. Sir, what is your next goal? What is your next goal? What is the next goal? Yes, sir. Like, probably I would say I want to see my products in your vanity. Sure, sir. So like we are aiming 100 crore by next year, Okay. and that is the goal that probably we'll achieve in another 6 to 8 months. Okay. So goals तो सर बढ़ते ही रहते हैं. Like, sir, any new product is going coming in our Yes, venue? we are coming up with one of the very exclusive ranges Okay. that we are coming up with Nykaa exclusive, Okay. and those ranges are typically for the people who have an aspiration to buy a premium product, Okay. like a GHT or a Dyson, but they don't have 45,000 or 50,000 to spend. We are coming up with a similar product, similar technology, a lot of things are there, but at a price point which is almost 1/4 of the price. Same premiumness, same product, same feature, more features, Okay. more unique design, but at 1/5 or 1/4 of the price. Right, So that sir. is the problem that we'll be solving again. Okay, sir. Sir, last but not the least, sir, any motivation or message you would like to give to the student of Galgodias University? I would like to say that what I have seen the entire session which has gone around, that people like the students here are motivated enough already, right? आपने ESL बना दिया है और अब आज आपने लॉन्च भी कर दिया है पूरा, so I'm sure फंडिंग वगैरह सारी चीजें तो आप ले ही आओगे, but people have a lot of ideas. As I told कि उसी सेशन के अंदर when someone else was speaking, I was talking to 3 different students कि उनके ideas क्या हैं. तो जनरली ये कॉलेजेस में होता नहीं है, राइट? एंड व्हाट द पीस ऑफ एडवाइस इज कि मैंने सेशन में भी बोला था, व्हाट एवर आइडिया यू हैव, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ. अच्छा है, बुरा है, दूसरा बंदा मेरे आइडिया के ऊपर मजाक उड़ाएगा, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, लीव दैट थॉट्स अराउंड, राइट? जो भी है डिस्कस करो, और एक क्लियर मत डिस्कस करो कि मेरा आइडिया को चुरा लेगा. कोई आइडिया नहीं चुराता. अगर आपके पास एग्जीक्यूशन की पावर है तो आप ही कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाएगा. Right, sir. Right. So this is what I can say. Like people are already motivated. So all the best. I'd love to see you again. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.